مصر کے شہر قاہرہ کے قریب ہے دریائے نیل کے مغرب میں یہ 3 مثلث نما اونچی پتھر کی عمارتیں ہزاروں سال سے کھڑی ہیں۔ انہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ مانا جاتا ہے۔ اہرام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں دنیا کے 7 عجائبات میں سے سب سے قدیم ترین پتھروں سے بنے ہوئے فرعون کے دیو ہیکل مقبرے آ جاتے ہیں۔ یہ اہرام سرزمین مصر کی پہچان ہے اور صدیوں ریگستان کی جھلسا دینے والی گرم ہواؤں، آندھی، بارش اور بجلی کی کڑک کے باوجود دھرتی پر ایستادہ ہے۔ اپنی عجیب و غریب ساخت، حیرت انگیز خصوصیات اور پراسراریت کے سبب آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے اہرام مصر کشش اور تجسس کا باعث ہے۔ بڑے پتھروں کو اس عمدگی سے اس بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کے کاریگروں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اہراموں کی تعمیر اور ان میں استعمال کیے ہوئے سامان، پیمائش کی درستی، ان عمارتوں کی عظمت اور کاریگری اور اس سے متعلق دوسرے رازوں نے سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رکھا ہے، جو صدیوں سے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ شاید پوری دنیا میں اس قدر پراسرار اور تعجب خیز کوئی عمارت نہ ہوگی جو ایک ویران میدان میں کھڑی پوری دنیا کے سائنسدانوں اور اہل علم کو اپنے وجود سے حیرت زدہ کر رہی ہو۔ بعض ماہرین مصریات اہرام کو محض مقبرہ یا پھر معبد قرار دیتے ہیں، لیکن بعض مورخین کا خیال ہے کہ اہرام قدیم علوم کے محافظ ہیں۔ انتہائی ہولناک تباہیوں اور طوفانوں کے خطرے کے پیش نظر قدیم لوگوں نے اپنے علوم، کتابوں، ایجادات اہرام کے خفیہ کمروں میں محفوظ کر لی تھی تاکہ انہیں محفوظ رکھ سکے۔ کچھ ریسرچرز کا خیال ہے کہ اہرام خلائی مخلوق UFO نے تعمیر کیے ہیں تاکہ وہ دوسرے سیاروں سے رابطہ قائم کر سکیں، یا پھر یہ علم نجوم کے لیے بنائی گئی رصدگاہ ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اہرام زلزلوں کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ چند سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اہرام دراصل پاور پلانٹ ہے جنہیں قدیم ادوار کی ترقی یافتہ قومیں توانائی کے حصول کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہ توانائی شمسی تھی یا کرسٹل انرجی یا پھر کاسمک ریز، اس حوالے سے تحقیق ابھی جاری ہے۔ پیرانارمل سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اہرام دراصل ایسے اینٹینا کا کام کرتے ہیں جو توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل اور دوسری جگہ کی توانائیوں کو موصول بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق قدیم اقوام کے لوگ اسے بطور مواصلاتی نظام بھی استعمال کرتے تھے، اس لیے یہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ چند محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مواصلاتی سسٹم ٹیلی پیتھی کے ذریعے چلتا تھا۔ قدیم مصر کے لوگ اہرام میں بیٹھ کر اپنے ذہن سے خیالات کو دور دراز فاصلے پر موجود اہرام میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک منتقل کر دیتے تھے۔ میں 2 بار مصر گیا اور قاہرہ میں 2 بار اہرام مصر کی سیر کی۔ پہلی مرتبہ ہم مصری حکومت کی دعوت پر چند ساتھیوں کے ساتھ گئے اور بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ سفیر پاکستان انور کمال کی دعوت پر گیا تھا۔ اہرام مصر کی تعمیر میں اس قدر سائنسی راز پوشیدہ ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو ان سے آگاہ کر دوں۔ آپ پڑھ کر یقین نہیں کریں گے، مگر یہ حقیقت پر مبنی حقائق ہیں۔ آئیے پہلے یہ واضح کر دیں کہ اہرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 4,500 سے زائد سال گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زائد اہرام موجود ہیں۔ ہر اہرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سب سے بڑا اہرام جیزا کا ہے جو فرعون خوفو یا خیوپس کے لیے بنایا گیا۔ جو پتھر اہرام میں لگائے گئے ہیں ان کا وزن 2 سے 15 ٹن تک ہے۔ اہرام میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے ہیں۔ فرعون کے کمرے کی چھت پر جو پتھر لگا ہے اس کا وزن 70 ٹن ہے، اور آج تک کوئی یہ حل پیش نہیں کر سکا کہ کس طرح بنانے والوں نے اتنا بڑا اور وزنی پتھر چھت پر لگایا۔ پراسرار علوم کے ماہرین ایڈگر کیسی اور لوپ سنگ رمپا کے مطابق قدیم مصریوں کے پاس ایسی مشینز تھی جو کشش ثقل کی نفی کر سکتی تھی، جس کی مدد سے کئی ٹن وزنی پتھروں کو پروں کی طرح اٹھا کر یا ہوا میں تیرا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا۔ ایک ماہر علوم مصریات ولیم کنگز لینڈ اپنی کتاب گریٹ پیرامڈ ان فیکٹ اینڈ فکشن میں تحریر کرتے ہیں کہ اہرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو ان منتروں کے ذریعے وہاں تک لایا گیا ہے جو پادری اور مزدور پڑھتے تھے۔ اہرام کی بلندی 149.4 میٹر ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین اور سورج کے درمیان 149 ملین کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے۔ اہرام کے اندر جانے کا راستہ ایک ستارہ یعنی شمالی پول کی سمت بتاتا ہے، اور اندرونی راستہ سک ستارہ سیریس اسٹار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
अगर आप गोश्त का ताजा खून आलू टुकड़ा एहराम के कमरे में रखेंगे तो वो सड़ेगा नहीं बल्कि खुश्क हो जाएगा। ये राज आज तक राज ही है। एहराम के सरकमफ्रेंस पर मुहित को उसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी अगर किसी दायरे के मुहित को उसके कतर से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है। नाकाबिले यकीन करिश्मा है। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि उस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई है। जिस तरह बाज घड़ियों के डायल रात को चमकते हैं क्योंकि उनकी सुइयों और नंबरों पर तापकार धात रेडियम के रंग की पॉलिश होती है। तीनों एहराम की लाइन आसमान में चमकने वाले सितारों बेल्ट ऑफ ओरिनियन के मुतवाजी पैरेलल है। साल में एक दिन सूरज की शुआएं एहराम के अंदर दाखिल होती हैं। ये दिन फिरौन का यौम पैदाइश है। एहराम में रखी तलवारें और चिड़ियां जंगालूद नहीं होती, हालांकि हजारों बरसों से वो वहां मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को समझ नहीं सके। एहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं और साइंसदान आज तक ये राज हल नहीं कर सके। ताज्जुब की बात और राज ये है कि तीनों एहरामों से जो लकीर गुजरती है वो बहराए ओकियानूस में वाक़े बरमुदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल में वाक़े फार्मोसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती हैं। ये दोनों जगह अपनी अजीब खुसूसियात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज, बहरी जहाज गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, 2 जमीन से ऊपर हैं और 1 जमीन के अंदर। और कहा जाता है कि मिराबो नामी शख्स माहिर इंजीनियर ने ये एहराम तकरीबन 20 बरसों में बनाया था और 1 लाख मजदूरों ने इसकी तामीर में जान खोई थी। एहराम की बुनियाद के चारों रुख इंतहाई ताज्जुब के साथ जमीन की चारों सिमतों की तरफ इशारा करते हैं और इस हैरत अंगेज दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता था। जो दायरा ऑर्बिट एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो तमाम बड़े आजमों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। उनका रकबा एक दूसरे से बराबर है। अगर ब्लेड्स वहां रख दिए जाएं तो वो इंतहाई तेज तलवारों में तब्दील हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। साइंसदान कहते हैं कि जो बातें आज तक पुरानी चीजों और राजों में मिली हैं, वो समंदर में कतरे के बराबर हैं। ये यकीन करना आसान नहीं है कि उस वक्त तकनीकी आलात के बगैर लोग ऐसी पायदार इमारतें बना सकते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए। बरतानवी मौरिख ग्रीक जेन्स ने तारीख के दिलचस्प पहलू को बयान किया है और उन्होंने कदीम मिस्री तारीख और खलाई आसार कदीम के माहिर प्रोफेसर सारा पार्किक और अमरीकी मिस्री मिज़ाह निगार मारिया शाहता के साथ दुनिया के इस अजूबे के बारे में बात की। एहराम की तामीर सिर्फ भारी पत्थरों का बोझ नहीं थी। कदीम मिस्र में मार्कर थे जो लोग कट के मकाम का तयन करने के लिए लकड़ी या पत्थर पर निशान लगाते थे, जिन्होंने पत्थर के टुकड़ों की तादाद का हिसाब लगाया ताकि एहराम की जगह पर ले जाया जा सके और ये भी तयन किया कि जमीन में कोई ढाल तो नहीं। मिसाल के तौर पर अजीम खुफू एहराम के हर तरफ 52 डिग्री की एक मुकर्रर ढलवान है। एहराम बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले हिसाब की दुरुस्तगी से पता चलता है कि ये लोग ज़हीन और हुनरमंद रियाजीदान थे। अगर किसी को एहराम बनाकर अब्दी जिंदगी मिल गई है तो वो सुकरा में पहले एहराम के डिजाइनर एमहुत्तिब हैं। एक हुनरमंद मेमार होने के अलावा वो फिरौन के दरबार में एक आला ओहदे पर फाइज थे और एक पादरी और मौलिश भी थे। कदीम मिस्रियों ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि बाद में उन्हें देवता का दर्जा दे दिया। 1960 के आसपास फिल्म बीनों ने उनके किरदार को अपने तरीके से दोबारा तख्लीक किया और उन्हें फिल्म दी ममी में विलन के तौर पर पेश किया, जो जेम्स फ्रेजर और रिचल वेज को खौफजदा करता है। एहराम बनाने वाले तवाना और मजबूत जिस्म के मालिक थे। ये मर्द मशरूबात और प्रोटीन शेक नहीं पीते थे। एहराम बनाने वाले मजदूरों के देहात में बत्तखों, भेड़ों, खंजीरों और गाय की बाकियात से पता चलता है कि एहराम बनाने वाले गोश्त और रोटी का भरपूर इस्तेमाल करते थे। उन मुलाजमीन का कब्रिस्तान भी एक ही चीज जाहिर करता है, क्योंकि उस काम के दौरान हादसात भी पेश आए, लेकिन हैरत अंगेज तिब्बी देखभाल की बदौलत बहुत से जख्म मोहल्लिक नहीं थे और लोगों की टूटी हुई हड्डियों का भी इलाज किया गया। जब एहराम के वर्करों के ग्रुप ने अपने आप को फ्रेंड्स ऑफ खोफो कहा तो ऐसा लगता है कि उन्हें अपने काम के माहौल से कोई मसला नहीं था। उन ग्रोहों की जानिब से छोड़े गए पत्थरों पर बनी तस्वीर और लेथोग्राफिस से पता चलता है कि उनमें एहराम बनाने वाले दूसरे ग्रुपों के साथ फख्र, यकजहती और सेहतमंद मुकाबले का एहसास था।
अहराम पानी के आसपास थे। आज जीजा के अहराम रेत के टीलों के दरमियान वाक़ है, लेकिन जब वो बनाए गए थे तो उन्हें इसी तरह रखा गया था कि उनकी तस्वीर का अक्स दरियाए नील के पानी पर पड़ा, जो उस वक्त करीब था। कदीम मिस्रियों ने दरियाए नील पर नहरें बनाई थी, जिसकी वजह से अहराम के मकाम के करीब पत्थर के बड़े टुकड़े थे। जीजा का अहराम सैकड़ों दीगर अहरामों के मजमूए में घिरा हुआ है, जो कदीम मिस्र के अहम लोगों से ताल्लुक रखते हैं। माहिरीन आसार कदीमा को मिस्र के अहरामों में कोई कुल्हाड़ी, सांप के गड्ढे या यहाँ तक कि कोई आम जाल नहीं मिले। अहराम मिस्र अब भी माहिरीन आसार कदीमा को परेशान करता है। अब भी अहराम मिस्र और उसकी तामीर करने वालों के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिनके बारे में माहिरीन आसार कदीमा नहीं जानते। मिसाल के तौर पर उन बड़े मकबरों में खाली जगह हैं जिनके बारे में आसार कदीमा के माहिरीन अब भी बहस कर रहे हैं कि वो किस तरह तामीर किए गए थे। एक अमरीकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा है कि ये राज इस बात के शाहिद हैं कि ये किसी बैरूनी आसमानी मखलूक की कारकर्दगी है। जमीनी मखलूक इतनी अक्लो फहम नहीं रखती थी या रख सकती है, वल्लाह आलम। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।